Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your social science teacher, and today we are going to continue the same chapter, nationalism in Europe. Actually, yesterday 2-3 students missed the class. So first of all, recapitulate. We will discuss what we have done yesterday. So let me talk to Abhijot. Abhijot, unmute yourself. But which question we have done yesterday? And the question we done yesterday was the contribution of revolutionary named Gatsby Mazzini, what he did to change the society. ठीक है बेटा. We have done on copy. No, we have to learn from book. How many marks this question carry? 5 marks. Okay. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, Kashish. So this question we have done and directly we have marked on book. We will not write in copy because same as it is NCERT language, very much simple language. So we have done on book. Gatsby Mazzini, revolutionary. Hanji, beta, Harleen and Vikram, beta cameras on. Yes, Vikram camera on, beta. So let me take your attendance first. Then I will lock the classroom. Okay. And we will start next topic. We are very slow. Sometimes I realize we are very slow. We are doing only one question a day. But no problem. Question must be clear to you. Sometimes I never give anything to write. No problem. But the things must be clear. It means you have to learn whatever we have done in the class. Right? Anji Suktaj, bit a camera on. Yes. Now this look like a very good class. I will wait only for 1 minute. You please arrange your books and copies. Bring your books and copies along with you and pens. And if you have highlighter, arrange it for headings. Because some of the few lines underlined to be underlined and other headings must be highlighted. Okay. Now 6 minutes gone. So I'm going to start my class. After 4 minutes, I will lock it. Yadvir, make your camera proper, beta. Just Karan Suktaj, camera on, beta. Yes. Camera on, Abhijit, beta. Anji, camera on, issue. Let me lock the class, then we will start. तब तक आप देखो जो हम पीछे पढ़ाए हैं सारा आता है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं तो अभी पूछ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है? It should not like that कि आपको आने ही चाहिए अभी. मतलब things must be clear, topic must be clear to you. कोई डाउट ना रहे तो लर्निंग तो साथ साथ में चलती है. And when you will revise all the chapter, definitely things will be in your mind. Automatically वो आपके दिमाग में घूमेंगी सब चीजें जो आप एक बार पहले पढ़ चुके हो. ठीक है? चलो, now open your book. Page number. Harshita, page number from which we are going to read today. Let me check you. You know or not? Good morning, ma'am. The page number. Ma'am, page number 13. And the topic. The Age of Revolutions, 1830 to 1848. चलो, अच्छा आज तक कितने साल हो गए? 1813 to 1848. How many years? Count करो तो. Ma'am, 18. You're good in mathematics. 18 years of revolution. 18 साल तक revolution चलती रही. Just keep one thing in your mind. जब 18 साल तक revolution चलती है, तो it means the country will be in economic depression. The country will be financial weak. The people will not be happy with the authority and with the king or queen or with the government, any kind of government. 18 साल तक अगर revolution चलेगी, तो things will not be clear. ठीक है? चलो, heading आपको clear होनी चाहिए. फिर हम पढ़ते हैं 18 साल में क्या क्या हुआ. Right? हाँ जी. Take a pen in your hand because some of the important lines to be underlined.
अटेंडेंस भी जरूरी है ना आपकी बेटा, अटेंडेंस स्कूल में भेजनी होती है, रजिस्टर पे मार्क करनी होती है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन योर अटेंडेंस. चलो, हर्षिता, unmute yourself. Now start reading. Again, tell them page number and topic. Page number 13, the age of revolutions 1830 to 1848. चलो, thank you. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism Wait, Harshita. It's a regime. What will you say? Regime, not regime. Okay. Yes. Continue. associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland. Continue. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. Chalo. Thank you very much, Harshita, that you have read in a wonderful way. Things are little clear to us. अभी जो थोड़ा सा पीछे होके बैठ बेटा कैमरा से, थोड़ा सा ऐसे मेरे को, I want to see your face. आराधना कैमरा ऑन बेटा, सुखताज कैमरा ऑन. Yes. As conservative regime tried to consolidate their power, conservative ने अपनी पावर को एक हाथ में रखना चाहा. Liberalism and nationalism came in to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italy, Germany, Ottoman Empire, Ireland और Poland. फिर भी कंजर्वेटिव के इतना कुछ करने के बावजूद भी लिबर्टी लोगों को समझ आती गई, रेवोल्यूशन होती गई और रेवोल्यूशनरीज अपना काम करते गए. वरुण कैमरा ठीक करो. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated people. मैंने आपको पहले बोला था कि रेवोल्यूशन हमेशा एजुकेटेड पीपल लाते हैं, पढ़े लिखे लोग लाते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट, इवन प्रोफेशनल्स, बिग बिजनेसमैन, दोज हु आर एजुकेटेड, तो फिर भी रेवोल्यूशन लाते रहे. तो इन स्पाइट ऑफ मच ऑफ द एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेटिव्स, दोज हु बिलीव्ड इन मोनार्की, फिर भी रेवोल्यूशन आती रही. And the age, the period, you know that 1830 to 1848, 18 साल तक रेवोल्यूशन नेशनलिज्म चलता रहा. नॉट इन फ्रांस ओनली, फ्रांस में तो काफी कुछ आगे हो चुका था, होल पार्ट ऑफ यूरोप. हाँ जी, कशिश राणा, सुखताज कैमरा ऑन. अगेन एंड अगेन आई विल नॉट टेल यू. हाँ जी बेटा. साहिजप्रीत, कंटिन्यू बेटा, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो. द फर्स्ट अपहीवल. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the Conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezed, Metternich once remarked, "The rest of Europe catches cold." The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. साहिजप्रीत ने एक लाइन पढ़ी है, अभिजोत से नहीं पूछूंगी बिकॉज अभिजोत told me yesterday. Just Karan, unmute yourself. Sahijpreet, read one line which I told you at the beginning of the chapter. Which was that line? Ma'am, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. हाँ, ये वाली लाइन हमने बार बार पढ़ी है. आज ये लाइन हम ब्रीफ में करेंगे कि क्यों फ्रांस एक छींक भी मारता था, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था. फ्रांस ने ही रेवोल्यूशन शुरू करी 1789 में, और फिलोसफर थे जीन जीकस रूसो, वॉल्टर, मॉन्टेस्क्यू, वंडरफुल बुक्स they have written like Social Contract, and its line was, why man is in chains when he is born free. So these type of books contribute much in the form of liberty and revolution.
Right. Now this paragraph Sahij read, I'm going to clear it. इसने पढ़ा कि first upheaval took place in 1813. Upheaval 1789 वाली वो पहली revolution थी. Then 1830. Okay, underline beta, 1 mark answer or your MCQ. The Bourbon kings who had been restored power during conservative, Bourbon king नेपोलियन के टाइम में पावर खो चुके थे. बट कंजर्वेटिव के टाइम पर बर्बन किंग को फिर से पावर मिल गई थी. ठीक है, कब? 1815 जब वियना कांग्रेस हुई तो इन्होंने फिर से वो ले लिया. एनी रमणीक इन आवर क्लास? हर्षिता, कोई रमणीक है हमारी क्लास में? ओके, एडमिट कर रही हूँ मैं इसको, काफी लेट है बट आज वो ऑन कर दूंगी. हाँ जी. देन now overthrown by liberal revolutionaries who installed the constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. और इसका हेड बन गया था लुइस फिलिप. योर 1 मार्क आंसर. अब मोनार्की खत्म हो गई है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई. राइट. देन व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold. मेटरनिक ने बोला था ये, ड्यूक मेटरनिक. थोड़ा सा मुझे बताना ड्यूक मेटरनिक कौन था, मैं भूल गई. वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ. ये ड्यूक मेटरनिक कौन था? रीटा मैम फॉरवर्ड. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग वरुण. कौन था ड्यूक? I cannot hear you. Can you repeat? Who was Duke Metternich? 4 hands raised. See वरुण, तुझे नहीं आता but 4 hands raised. हाँ जी विक्रम, unmute yourself. Ma'am, he was the head of Vienna Congress. हेड मतलब चांसलर बोलो ना, चांसलर. ओके. He believed in Harshpreet, unmute yourself. He believed in monarchical form of government. yes. He believed in conservatism. Okay. चलो अरमान बेटा वीडियो ऑन. आपका हमेशा यही इशू रहता है अरमान का. He joined class for 2 minutes and then left. So continuously absent. Don't try to be over smart. Okay, here you are here only for learning. If you want to enjoy the lesson, you have to attend full lesson. Okay. Now meeting is locked. No one will enter in the class. हाँ जी. Now last line it is Brussels which led the Belgium. Brussels is the capital of Belgium. लिख लो बेटा. Brussels is the capital of Belgium. ये आप फर्स्ट लेसन में पढ़ोगे, पावर शेयरिंग ऑफ सिविक्स. अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और ये यूनाइटेड किंगडम से दूर था. मींस यू हैव रेड दैट इन स्पाइट ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम फिर भी रेवोल्यूशन आती रही. रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे सीक्रेट तरह से आती रहे. ओके. सावनवीर बेटा अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज वीडियो ऑन. सुखताज वीडियो ऑन. हाँ जी. गुरपाहुल बेटा स्टार्ट रीडिंग थर्ड पैराग्राफ. अनम्यूट कर रही हूँ. यस. An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. Wait. अब ये एक एक लाइन पढ़ना because this is important question. पहले मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ाया, कुछ खास नहीं था. Now this paragraph is very important to read one line only. Where you see full stop, you have to stop. Now बेटा first of all please write your question. इस थर्ड पैराग्राफ से जहां गुरपाहुल ने पढ़ना शुरू किया ना, you can see on screen. This is the third paragraph. Now please write your question. Explain Greek War of Independence. यहीं पर लिख लो. Not on copy. Explain Greek War of Independence. Explain Greek War of Independence. Savanveer video on. Sukhtaj camera on. Now गुरपाहुल ने एक लाइन पढ़ी है, ऑटोमन एम्पायर आ गया था. ऑटोमन एम्पायर स्मार्ट था और ग्रीस बेचारा छोटा सा भोला सा देश था.
इसका कल्चर बहुत बढ़िया था। ग्रीस का अगर कोई आपसे समवन, इफ समवन इज आस्किंग 1+ पॉइंट फ्रॉम ग्रीस, दैट इज कल्चर। इसका कल्चर बड़ा अच्छा था, भोले से शर्मीले से लोग थे, ठीक है। नाउ गुरपाहुल हर एक फुल स्टॉप के बाद रुकना तुम्हें, ठीक है। He has redlined an event mobilized nationalist feeling among the educated elite. इसको elite नहीं पढ़ना, ये elite है। Write down the meaning of elite. Elite मतलब educated and important people. Educated and very important people. सोसाइटी के कुछ खास लोग, VIP, ब्रैकेट में लिख लो VIPs. Educated and important people. Savanveer, video on. Educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Independence की वॉर तब आई थी जब पढ़े लिखे लोगों ने, elite people ने सोचा। Greece had part of Ottoman Empire since 15th century. 15th century तक तो 15th century मतलब बड़े सालों पहले समझ जाओ आप कि वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। ऑटोमन एम्पायर आप अपने हाथ से लिखो, मुस्लिम एम्पायर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना ऑटोमन का। ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम एम्पायर। Yes. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek and began in 1821 में ग्रीक ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना शुरू करा। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in the exile. और इन नेशनलिस्ट को जो दूसरे स्ट्रगल कर रहे थे वहां से सपोर्ट मिला, तो ग्रीस की तो चांदी हो गई। ग्रीस तो खुश हो गया कि उसकी हेल्प के लिए कोई और है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपथाइज्ड फॉर एंशिएंट कल्चर, अब जिनको ग्रीस से प्यार था ना, जिनको ग्रीस का कल्चर अच्छा लगता था, उन्होंने ग्रीस की हेल्प की। See what happened कि if you have suffered the same kind of pain and disease and suffering, you will definitely realize the same pain for others. आज मुझे दुख है किसी चीज का, कल को किसी और को होगा तो मैं समझ पाऊंगी कि यही जब मुझ पे बीती थी तो क्या हाल था, है ना। इन द सेम सेंस ग्रीस वाज आल्सो struggling for independence and those country who already struggled and got independence, उन्होंने फिर ग्रीस की हेल्प की। Now see, we have struggled a lot for independence. 300 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल ओवर करा and in 1947 we got independence. After that whoever so country was struggling for the independence, इंडिया ने हमेशा उनकी हेल्प की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो। हमने हमेशा, क्योंकि हमने वो ट्रॉमा फेस करा है किसी के अंडर सर्वेंट बन के रहने का, मालिक होते हुए भी हम सर्वेंट थे, तो एवरी टाइम इंडिया हेल्प दोज कंट्रीज। बांग्लादेश की हमने बहुत हेल्प की थी, आज भी बांग्लादेश हमारी कदर करता है इंडिया की। इन द सेम सेंस व्हेन ग्रीस वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, अदर कंट्रीज वर आल्सो हेल्पिंग। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा पढ़ो। गुरपाहुल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Done. Next. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in the exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Yes, now he has read nationalists in Greece got support from Greeks living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture. ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दी लाइन, जिनको उसके साथ सिंपैथी थी उन्होंने ग्रीस की हेल्प करी। हाँ जी, पोइट एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। 1 mark आंसर। Which country was known as the cradle of European civilization?
कहते हैं यूरोप की एग्जिस्टेंस ही सिर्फ ग्रीस की वजह से आई, क्योंकि ग्रीस बहुत ही कल्चरल कंट्री था, छोटा सा देश था, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, और सभी ने ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ ग्रीस की हेल्प करी। द इंग्लिश पोइट, बेटा पढ़ना जरा गुरपाहु। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. ठीक है, Finally, the लॉर्ड बायरन एक पोइट था। लॉर्ड बायरन पोइट होने के साथ साथ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करा था। एंड वन लाइन यू गॉट टू नो दैट व्हेन ही फाइट फॉर वॉर देन ही डाइड विद फीवर इन 1824, वहां उनकी डेथ हो गई। लास्ट लाइन गुरपाहुल मैं पढ़ देती हूँ। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट स्टेट, और एक छोटी सी ट्रीटी हो गई। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट हो गया इन 1832 एंड ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। Okay, so directly you will learn from here. Now question you have written, you please make 5 points from here on and appropriate heading. अब मुझे लगता है इतना आप समझ गए हो मैं कैसे पॉइंट बनाती हूँ, कैसे सूटेबल हेडिंग निकाल लेती हूँ उसी पैराग्राफ से, तो यू कैन वी विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन ऑन राइट। शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू इशू, थैंक यू बेटा, थैंक यू कशिश, थैंक यू बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग टुडे। यादविंदर, नाउ यू विल रीड, आई विल अनम्यूट यू। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, लीव बुक एंड कॉपी, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो ध्यान से, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, और वो पेपर में आना ही आना है। आज रीटा मैम ने बोल दिया वो पेपर में आना ही आना, चाहे सेट 1 में आए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सेट ही आएंगे, 2 नहीं आएंगे फाइनली, 3 होते हैं या 5 होते हैं, 2 की सेंस नहीं बनती, ठीक है। तो लिसन केयरफुली दिस क्वेश्चन। नाउ यादविंदर पढ़ेगा और इसकी हेडिंग है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। आपको पता है एवरी टाइम यू विल नॉट गेट इंडिपेंडेंस थ्रू वॉर्स एंड रिवोल्ट। जरूरी नहीं कि लड़ाई करके ही जंग जीती जाती है, जरूरी नहीं कि वॉर करके ही हमें नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। समटाइम नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, we are aware about the nationalist sentiments through some kind of things, उसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। Now where it is written a romantic feeling, romantic imagination, यहाँ अपने हाथ से लिखो romantic imagination, बेटा कल्चर प्लस लैंग्वेज, अब आपको क्लियर हो जाएगा, कल्चर प्लस लैंग्वेज। ओके, नाउ जो मैं समझा रही हूँ पहले वो ध्यान से सुनो, वो समझ आ गया तो आगे जो पढ़ेंगे that would be clear to you. Now romantic imagination means culture also played an important role. अब आप थोड़ा सा इंडिया में आ जाओ, यूरोप से निकलकर इंडिया में आ जाओ। Now see India's culture. All the countries of the world proud on India's culture. किसी कंट्री का ऐसा कल्चर नहीं है जैसा हमारे इंडिया का है। इंग्लैंड में देख लो, फैमिली देख लो, कल्चर जीरो। अमेरिका, इटली, जापान, चाइना, ऑल द मेजर कंट्रीज तरक्की जरूर कर रही है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, बट कल्चर जीरो। दे डोंट हैव एनी फैमिली वैल्यूज, दे डोंट हैव एथिक्स, दे डोंट हैव मॉरल वैल्यूज। बट हमारे यहाँ गर्ल्स आज भी फादर की लड़ती है, हमारे यहाँ कल्चर आज भी सही है। आज भी हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, पूजा इकट्ठी करते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं,
This culture, we got this culture from our parents. हमें किसने सिखाया ये कल्चर? हमें तो नहीं पता था, है ना? We got this culture from our parents. हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने सिखाया. तो forefathers taught us this culture. है ना? आज भी देखो इतना दुनिया में इतना वायरस फैल चुका है. नंबर ऑफ डेथ्स आर अकरिंग नाउअडेज. इन द मॉर्निंग टाइम हम लोग सुनते हैं न्यूज में तो दिल खराब होता है. फिर से इतनी सारी डेथ हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया. एंड ऑटोमेटिकली वी वेंट टू गॉड. मैं भी आपको कहती हूँ ना बेटा, प्रे टू अलमाइटी गॉड इन द मॉर्निंग कि सब ठीक हो जाए और आप स्कूल आओ. कितना भी हम तरक्की कर लें, वैक्सीनेशन ढूंढ लें, बड़े बड़े कंट्रीज लगे, साइंटिस्ट लगे हैं, बट फिर भी हम अपने कल्चर को, अपने गॉड को जरूर मानते हैं. दिस इज आवर कल्चर दैट वी हैव स्टिल नाउ लर्न द स्टोरीज ऑफ भगत सिंह, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे. ये सब की कहानियां हमें किसने सुनाई? हमने तो नहीं देखा महाराणा प्रताप को, मैंने कभी रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा, बट मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, और बुक्स में से हमने पढ़ा है. रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? जो मर गई छोटे से बच्चे के साथ, झांसी नहीं छोड़ा. इन द सेम सेंस आर पेट्रियोटिक सॉन्ग. मेरी बातों को ध्यान से सुनना. दिस इज योर 5 मार्क्स आंसर. बेटा पेट्रियोटिक सॉन्ग आज भी जनगण मन होता है, वंदे मातरम होता है. टीवी वाले कभी कभी फिल्मों वाले गाने भी हमें नेशनल सेंटिमेंट भरते हैं. ये जो भी गाना आया था बी पराग का, मिट्टी, है ना, गाना था ना मिट्टी, कितना टचिंग वो गाना था. सी मतलब गाना सुन के मतलब गूज बम्प्स होते हैं ना हमारे की. मतलब समटाइम तो दीज काइंड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनकर हमें मतलब वी अबाउट टू क्राई. तो हमेशा वॉर से नहीं जंग जीती जाती. जरूरी नहीं होता कि राइवल होकर लड़ाई करके ही हम जीते तभी हमें नेशनलिज्म आएगा. अब आपने फ्रेडरिक सलोर की पेंटिंग पढ़ी थी, आपने फ्रेडरिक सलोर की पेंटिंग में वो यूटोपियन विजन था, कुछ भी नहीं था ऐसा, बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी कुछ और कहता था. फ्रेटर्निटी लोगों को कोई और मैसेज दे रही थी. ऑल द पीपल आर वॉकिंग इन अ ट्रेन लाइन, ये कुछ और कह रहे थे. ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टैचू कुछ और कह रहे थे. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो थी एलिगरीज, भारत माता हमने बनाया और हमारी बहुत सी हुई है भारत माता के साथ. हमारा एम्बलम, हम सल्यूट करते हैं. नेशनल एंथम बजता है ना, चाहे मूवी देखने जाए, वी स्टैंड, हम खड़े होते हैं. सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग लेते हैं कल्चर. कितना भी फ्रेंच पढ़ लें हम लोग, स्पेनिश पढ़ लें, बट पंजाबी की अपनी बात. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो कभी ऐसा नहीं होता कि वॉर से ही जंग जीती जाए. नाउ शो मी थम्स अप इफ प्लेटफॉर्म इज क्लियर टू यू, देन वी विल रीड. यादविंदर विल रीड. चलो, थैंक यू वेरी मच. चलो यादविंदर शुरू करो बेटा. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. अच्छा पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, 5 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन ऑन बुक. पर ये क्वेश्चन हम कॉपी पे भी लिखेंगे. ओके हाँ जी. क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म? स्पेलिंग देख लेना, या रोमांटिक इमेजिनेशन कुछ भी लिख दो. व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म, रोमांटिक लिखा हुआ है, ISM डाल देना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग? What was the contribution of culture? इसके साथ ही लिखो, 5 मार्क्स आंसर है. What was the contribution of culture to shape nationalist feelings? थोड़ा छोटा छोटा लिख लो, स्पेस कम है ना. What was the contribution of national feelings to shape nationalist feelings? Five marks. Yes. यादविंदर शुरू करो बेटा. अब कोई मार्क नहीं करना किसी ने बुक पे आंसर, अभी सिर्फ यादविंदर पढ़ेगा एंड आई विल एक्सप्लेन. हाँ जी यादविंदर स्टार्ट बेटा. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग. यस बेटा. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation, art, and poetry.
stories and music helped express and shape nationalist feelings. हाँ, यादविंदर ने वही लाइन पढ़ी, जरूरी नहीं कि वॉर से ही नेशनलिस्ट फीलिंग आती है, अब लड़ाई तो हो ही जा रही है। अब देखो ये इस टाइम में भी चाइना ने हमारे बॉर्डर पर अटैक करा, जबकि पूरी दुनिया सफरिंग फ्रॉम वायरस, चाइना फिर बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने भी कुछ गड़बड़ की बॉर्डर पर उससे हम सुन लेते हैं, दो बातें कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। बट जब गाने सुनते हैं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाकर ऐसे पेट्रोटिंग सॉन्ग सुनते हैं, तो देख के मतलब मन और होता है कि दिल में नेशनलिस्ट फीलिंग जो डॉक्टर्स ने इस टाइम करा, इस साल डॉक्टर्स, कैन यू इमेजिन द कंडीशन, वो डबल किट पहनकर 24 घंटे मुंह पर डबल मास्क लगाकर, वियरिंग फुल शूज at the time of 40 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में भी they serve the country। सोचो, वो हम देखकर हमें फीलिंग आती है कि हम भी कुछ कर सकते देश के लिए, बट हम कर कुछ नहीं सकते। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, अपना ही काम कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ने का और पढ़ाने का। तो यादविंदर ने यही लाइन पढ़ी, आर्ट बेटा, आर्ट ही रोल प्ले करता है। कभी आपके स्कूल में भी अभी आर्ट कंपटीशन होगा ना, तो नंबर ऑफ पीपल विल ड्रॉ दैट काइंड ऑफ स्केच कोरोना वायरस टाइम पर। आप 2019, 2020, 21 वाले स्केच बनाओ, क्या बनाओगे? डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, पीपल हैं, फिर वो सॉन्ग है, कुछ भी आप, यू आर मोर क्रिएटिव देन मी, है ना? तो ये सब बनाओगे। आर्ट भी हमें नेशनल फीलिंग दिलाता है, तभी तो हम अपनी ड्राइंग्स बनाते थे। कल्चर भी फीलिंग्स दिलवाता है। यादविंदर ने एक और वर्ड पढ़ा है, दैट इज पोएट्री। अब रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स देख लो, स्टोरीज सुन लो उनकी, म्यूजिक, आज भी बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स पढ़ते हैं 6th, 7th, 8th में। So those type of all culture also played important role to provoke the feeling of nationalist sentiments. Do you agree with me? Show me thumbs up if you agree with me. जरूरी नहीं कि लड़ाइयां करके ही हम जंग जीत जाते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू हरलीन। हाँ जी यादविंदर, कंटिन्यू बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institutions, and mystical feelings. Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. हाँ, यादविंदर ने सही कहा, जो लोग आर्ट में विश्वास करते हैं ना, जो लोग म्यूजिक में विश्वास करते हैं, जिनमें फीलिंग्स हैं, आपको पता, सॉन्ग भी आप तब एंजॉय कर पाओगे अगर आप में फीलिंग्स हैं। ठीक है, किसी पेंटिंग को आप तब बना पाओगे इफ यू हैव फीलिंग्स। म्यूजिक, आपको पता है, म्यूजिक लवर वो बच्चे होते हैं, हर कोई नहीं गिटार बजाता, हर कोई नहीं सिंगिंग करता, सिर्फ वही कर पाते हैं जिनमें फीलिंग्स होती हैं। एंड दोज पीपल ऑलवेज अपोज साइंस एंड लॉजिक। वो लोग साइंस की तरफ दिमाग से नहीं सोचते हैं, और दोज हु बिलीव इन साइंस एंड लॉजिक, they never believe in art and culture. Now I am giving you one example. Now see, अभी लिखना कुछ नहीं है, I am telling you one example. Now see, those people who are having interest in art, अभी देखो जरा, मैं आपको बताती हूँ। Those people who are having interest in art, वो क्या करते हैं? They draw painting. Just सबसे पहले वो पेंटिंग बनाने से पहले दिमाग में इमेजिनेशन करते हैं। कोई भी पेंटिंग, मान लो लैंडस्केप बनाते हो आप, बचपन में बनाते थे ना लैंडस्केप। अब लैंडस्केप सुंदर लगे, बहुत ही अच्छा लगे, मेरा घर वहां पर हो, दिस इज इमेजिनेशन। कूल होके आप बनाओगे। आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले माउंटेन्स बनाते हो, है ना? फिर आप यहाँ से एक वाटरफॉल बनाते हो, यहाँ पर आप सन बनाते हो, क्योंकि आप में फीलिंग है यहाँ ऐसा वाला लोकेशन हो, मेरा घर हो। ठीक है, हियर यू ड्रॉ ट्री, ओके, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर मेरा घर हो, है ना? यहाँ पर साइड पर आप अपना घर बनाने लगे। ठीक है, आपने अपना घर बनाया, आप में फीलिंग है, आप सोचते जाते हो, इमेजिनेशन करते जाते हो, तो आपको ये देखो, आपने फिर डोर लगाया, फिर आपने हैंडल भी लगाया, यहाँ रूफ पे आपने ऐसे करा, है ना? फिर आपने बल्ब भी लगाया, ये आपकी इमेजिनेशन है।
ठीक है, यहाँ पर कोई भी भगवान का नाम आपने मैं नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ। तो दिस इज इमेजिनेशन। ठीक है, आपको लगा ऐसा मेरा घर होना चाहिए, इसमें आपने कोई साइंस नहीं यूज करी है। अब दोज पीपल हु बिलीव इन साइंस एंड लॉजिक वो कहेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ, दो तरह की ट्री, इसकी लैंड ऐसी है तो इस लैंड पे क्रिसमस ट्री उग ही नहीं सकता, और वैसे भी क्रिसमस और बानयान ट्री दोनों एक साथ होते ही नहीं है, और ये घर घर तो आपने बना दिया है ना। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये घर बनाया आपने, कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई। So this is totally wrong. So those people who believe in logic and science, they will not believe in art. So those people who will believe in art, science, art and their culture, their feelings, वो science में नहीं विश्वास करते. So there were two types of groups in the society. One group that believe in romanticism, culture, language, art, poetry, stories, and one group was totally different. They believe in science and logic. ठीक है, सो यही लाइन इसने पढ़ी, काफी ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया लाइन को कि आपको समझ आ जाए। चलो याद अंदर कंटिन्यू बेटा। हाँ जी। Other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Thus, it was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national building. हाँ जी, नाउ Nation building. थैंक यू यादविंदर, यू हैव रेड दैट। अब जितना इसने पढ़ा मैं उतना इसको क्लियर करवा देती हूँ, आपको क्लियर करवा देती हूँ। डन। अदर रोमांटिक्स, अब रोमांटिक्स मतलब रोमांटिक वो वाला रोमांटिक नहीं, रोमांटिक मतलब दोज पीपल हु बिलीव इन द कल्चर, दोज पीपल हु बिलीव इन द लैंग्वेज। जब जब रोमांटिसिज्म की बात आ रही है मैं आपको तब तक कल्चर और लैंग्वेज की बात करती हूँ। ठीक है, तो जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, मैं इसको जे जी हर्डर पढ़ती हूँ, आप भी शॉर्ट फॉर्म में 1 मार्क आंसर जे जी हर्डर। इसका नाम आप लिखोगे व्हेन यू विल राइट दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। जे जी हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Walk. Das Walk is a name of the book. So he wrote, J.G. Herder wrote this book, and in this book he specified and given the importance of culture. अब जिन ने ये बुक पढ़ी उनको प्राउड फील हुआ वहां के कल्चर पर, अपने कल्चर पर। अब जब हम महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनते हैं, their bravery stories, then national feelings arouse in us. Many times it happens. हमने कभी उनको नहीं देखा, उनकी फाइट कभी नहीं देखी, पर जब सुनते हैं भगत सिंह की कहानियां तो दिल करता है हमें भी कोई करे, देश के लिए कुछ कर जाए हम। So these type of culture, dance was उनकी book. It was through folk song, folk poetry, folk dance, the true spirit of nation. Box which this is the not Hindi word or English word was popularized. इनके जरिए folk dance, अपना folk culture, अब हमने अपने कितने भंगड़े पे नाच है ना, जिनको भंगड़ा पसंद है ना, वो जब बीट होता है ना शुरू, भंगड़ा बीट, वो रह नहीं पाते हैं। जब अपने कल्चर, अपने गाने शुरू होते हैं ना, वो रह नहीं पाते हैं, साथ साथ में we started singing along with that song. So it happened. This is our culture. So collecting and recording these forms of pop culture were essential for project of nation building. So nation building के लिए, दुनिया के अपने देश को बनाने के लिए, independence के लिए, these things were necessary. Which things were necessary? Vikram, unmute yourself. ऐसा ना हो कि मैं अकेली बोलती जाऊँ. Which things are necessary for nation building? Vikram? बेटा unmute yourself. हाँ बेटा. Which things are necessary except war? Culture. और हमारा language. ठीक है. So these things are necessary for the country. This much only. आज इतना ही पढ़ेंगे. लिखवाऊंगी कुछ नहीं. ठीक है. सिर्फ मार्क करवाऊंगी. Now take a pen in your hand and ready to mark question.
Take a pen in your hand. Beta, you have written that question. What is romanticism? उसी बुक पे आओ, मार्क करवाती हूँ. Yes. I am having with a page number 13. जहां से यादविंदर ने पढ़ना शुरू किया था. The development of nationalism up to feelings. This will be first point. This will be first point. And heading will be idea of the nation. The idea of the nation. Highlight kar lo. It is written, beta. Second point. Let us look. Next page tak feelings. Feelings tak. Next page feelings tak. This will be second point. And heading will be nationalist sentiments. Nationalist sentiments. हाँ हर्ष बेटा, you raised hand. Want to say something, बेटा? हाँ हर्ष. Can you repeat second point again? Yes. Let us look up to next page पे हाँ हर्ष. Feelings. This will be second. And heading will be nationalist sentiments. बेटा lower hand now. हाँ जी third. Their effort up to nation. And heading will be sense of shared collective heritage. इसकी इतनी बड़ी हेडिंग नहीं जाएगी, घबराना नहीं है, ओके? Sense of shared collective heritage. Next, Harjot, unmute yourself. We have done third. Now we are going to do the fourth one. Chalo, fourth. Other romantics. Up to Das Walk. Other romantics, Das Walk. And heading will be John Gottfried Herder. John Gottfried Herder, J.G. Herder. Last, fifth. It was nation building. Up to nation building. And heading will be nation building. Heading भी यही आएगी, nation building. Show me thumbs up if you have marked. Thank you. Now open your copies. Thank you very much. Open your copies. Write down today's date. Start writing answer.
हाँ हरजोत, यस बेटा. Good morning, ma'am. Could you please tell the meaning of Volksgist? Meaning of Volksgist. Just a minute. Just a minute. This is not Indian word, English word. Means nation, spirit of nation. Nationalism आप कह सकते हो. Love for nation, love for country. ठीक. Start writing बेटा. मुझे कॉपीज मेरे सामने खोलो. Write down today's date. 1st April. हाँ विक्रम, अनम्यूट कर रही हूँ बेटा. मैम इसका हम टॉपिक इंडेक्स में क्या लिखेंगे? रोल ऑफ कल्चर या रोल ऑफ रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन. स्टार्ट राइटिंग आंसर. वरुण लिख रहे हैं आंसर. स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर. राइट डाउन टुडेज डेट एंड क्वेश्चन, देन हेडिंग, एक्सप्लेनेशन. और विक्रम ने बता ही दिया, रिमाइंड करवा दिया that you have to update index after writing this question. I will check your copies बेटा. और handwriting साफ, कुछ नहीं समझ आ रही. If you feel any kind of problem or doubt while writing, you please raise a hand. I will unmute you and you can ask doubt. I'm here to help you out. Okay. Don't write wrong answer और confusion में मत रहना. So I'm going to end up the class and you please continue writing this question and learn also your homework. Learn plus write one question. Thank you very much beta. Thanks for joining. God bless you. Please update your copy. No pending work should be there.